all. I hope you all are doing great. So today we are going to solve question 45. The name of the question is Jump Game 2. So if you have not watched still the video of Jump Game 1, part 1 of this question, please check it out. I will provide the link of that solution in my description. Okay. So let's read the question. It states that you are given a zero indexed array of integers num of length n. Okay, so we are initially positioned at index 0. Okay, each element represents the maximum length of a forward jump from index I. In other words, if you are at an index I, you can jump to any index I plus j where these two conditions are satisfied. Okay, so we have to return the minimum number of jumps to reach the index n minus 1, means the last index of the array. So the test cases are generated such that we can reach index n minus 1. Okay, so simply the problem states that we have to return the minimum number of jumps we require to reach at the end of the array starting from the 0th index. Let's see how we can do this. Okay, let's see the test case first. See here, this is the array which was given to us and this is the output. Let's see how we have obtained this output. Okay, see, initially we are at this index, right? Initially we are at this index. Now see, what will I do? I'll first take one jump. ठीक है, मैंने एक jump लिया, मैं इधर आ गई at this. It means now jump value is 1, right? And then from this index I can take max to max 3 jumps. तो मैंने 3 jumps लेके, मतलब in one step I have reach over here. मतलब टोटल मुझे 2 जंप्स लगे ना, एक जंप मैंने इधर से इधर लिया और इस जंप में मैं 3 स्टेप्स आगे जा सकती थी, तो मैंने 3 स्टेप्स लेके मैं इधर आ गई, तो मुझे टोटल कितने जंप्स लगे? 2 जंप्स लगे. दैट वाज मिनिमम ऑफ द ऑल ऑफ द जंप्स. पहले जंप में मैं इधर आई, नेक्स्ट जंप में मैं सीधा किधर आ गई? इधर आ गई, बिकॉज मैं 3 जंप्स ले सकती थी. सो दैट्स वाई इसका आउटपुट क्या है? इसका आउटपुट है 2. ठीक है, नाउ सी, दिस इज द अरे गिवन टू अस, राइट? See here, what we can do. To solve the question, we will first check कि इस वाले इंडेक्स से मैं किधर किधर जा सकती हूँ. I can go here and I can go here, right? From this two, I can go either here or here. मतलब इस वाले नंबर में, इस वाली रेंज में I can come in one jumps, right? इन दो नंबर्स में अगर मुझे आना हो फ्रॉम द 0th इंडेक्स, मैं एक जंप लेके आ सकती हूँ, राइट? सो नेक्स्ट, ये तो मुझे पता चल गया कि अगर मुझे ये 3 और 1 वाली रेंज में आना है तो आई हैव टू टेक मिनिमम ऑफ 1 स्टेप. ठीक, मतलब कि मैं इस वाले में एक स्टेप में आ सकती हूँ. ओके, नेक्स्ट मैं इससे देखूंगी. फ्रॉम दिस 3 आई कैन गो टिल हियर एंड देन टिल हियर, राइट? मतलब इस वाले में मैं कितने जंप्स में आ सकती हूँ? आई कैन गो फ्रॉम इन 2 जंप्स. ठीक है, लेकिन मैं इस वाले वन पे ऑलरेडी पहुंच सकती थी विद द मिनिमम स्टेप ऑफ 1, तो मतलब मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी एक स्टेप और एक जंप में यहाँ पे पहुंच सकती थी. तो मतलब अगर मुझे इस वाली रेंज में आना होगा तो मुझे मिनिमम कितने स्टेप्स चाहिए? 2 स्टेप्स चाहिए, राइट? तो यही तो मेरा आंसर था 2, है ना? क्योंकि मैं लास्ट इंडेक्स तक पहुंच गई हूँ, तो मैं सिंपली ये क्या रिटर्न करूंगी? ये नंबर ऑफ मिनिमम स्टेप्स. नाउ सी कि हम इसको कैसे देखेंगे. ये तो हमने देख लिया कि हमें रेंज पे काम करना है, ठीक है, कि मैं किस किस रेंज पे कितने मिनिमम स्टेप्स लेके पहुंच सकती हूँ. ठीक है, नाउ लेट्स सी दैट हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. ओके, सो लेट मी राइट डाउन द array once again for proper understanding. So this is 2, 3, 1, 1 and 4. Now see, to solve this question, we are going to use 2 pointers. Okay, we are going to use one left pointer, okay, which will mark the near end, or you can say the start of range. Okay, and we will have one right pointer which will be the far pointer, or you can say the end of range. Okay, and also we have one farthest pointer which will be the farthest of the range. ये हमें ये बताएगा कि हम कितनी दूर तक अपनी रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं. जैसे ये 3 था ना, मैं इस 3 से फारदेस्ट किस पॉइंट पर जा सकती हूँ वो मुझे ये वाला पॉइंटर बताएगा. ओके, सो इनिशियली द लेफ्ट एंड राइट विल बी एट हियर. ठीक है, मेरा लेफ्ट भी इधर है, सॉरी, इट विल बी लेफ्ट राइट. सो मेरा लेफ्ट भी इधर है एंड मेरा राइट भी इधर ही है. ठीक है, ओके, मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले तो एक चीज चेक करूंगी कि जब तक
मैं लास्ट तक नहीं पहुंच सकती, मतलब जब तक मेरा ये जो राइट वाला पॉइंटर है, जब तक ये लास्ट इंडेक्स पर नहीं पहुंच जाता, मैं तब तक अपने लॉजिक को क्या करूंगी, चलाऊंगी। ओके, नाउ सी, अब मैं क्या करूंगी, ये मेरे पास एक रेंज है लेफ्ट टू राइट। ओके, सो लेफ्ट टू राइट मेरे पास क्या होगी, एक रेंज होगी। इस रेंज में मैं अपना फारदेस्ट पॉइंट ढूंढूंगी कि मैं इस रेंज को यूज करके फारदेस्ट किस पॉइंट तक जा सकती हूँ। तो इनिशियली मैं अपने फारदेस्ट को क्या करूंगी, जीरो इनिशियलाइज कर दूंगी। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी, मैं अपनी रेंज के ऊपर आइटरेट करूंगी। ठीक है, कौन सी रेंज, ये लेफ्ट टू राइट वाली रेंज। ठीक है, विद यूजिंग दिस रेंज मैं अपना फारदेस्ट पॉइंट क्या करूंगी, फाइंड करूंगी। ठीक है, तो मतलब मेरा आई कहाँ से शुरू होगा, आई शुरू होगा मेरा लेफ्ट से एंड आई विल गो टिल राइट। ठीक है, इस वाली रेंज में मैं क्या करूंगी, अपना फारदेस्ट पॉइंट ढूंढूंगी कि मैं कितनी दूर तक अपनी रेंज को एक्सटेंड कर सकती हूँ। ओके, so how I will find the farthest, the farthest it will be max, right, whatever the maximum value farthest, or see how I will find the farthest value. Now see, this was the array. Suppose I am standing over here. ठीक है, मैं इस वाले पॉइंट पर खड़ी हूँ। इस वाले पॉइंट से मैं कहाँ तक जा सकती हूँ, मतलब कितनी दूर तक जा सकती हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट। सी, नाउ माई आई इज एट 1, राइट, एंड nums of I is what, the number of steps I can take, right. अब मैं आई से कितने स्टेप्स लूं कि मैं, मतलब आई से मैं कितनी दूर जा सकती हूँ यूजिंग दीज स्टेप्स। सिंपल है, क्या करूंगी मैं, आई प्लस नम्स एट आई, है ना, कि मैं अभी 1 पे हूँ, प्लस 3 कर दूंगी तो 4, मतलब मैं 4th इंडेक्स तक जा सकती हूँ टू द फारदेस्ट यूजिंग दीज नंबर ऑफ स्टेप्स। सो दैट इधर क्या आ जाएगा, इट विल बी farthest is equals to max of farthest and I plus nums of I। ठीक है, जब मैं ये पूरी अपने रेंज में आइटरेट कर लूंगी, आई विल फाइंड द फारदेस्ट पॉइंट। आफ्टर फाइंडिंग द फारदेस्ट पॉइंट, व्हाट आई विल डू, आई विल इंक्रीमेंट बाय लेफ्ट एंड इट विल नाउ बिकम राइट प्लस 1। क्यों, फॉर फाइंडिंग द नेक्स्ट रेंज एंड फाइंडिंग द नेक्स्ट फारदेस्ट पॉइंट। ठीक है, मैं अब लेफ्ट को जस्ट राइट के एक बाद प्लेस कर दूंगी सो दैट मैं नेक्स्ट वाली रेंज को क्या कर सकूं, एक्सप्लोर कर सकूं, एंड माई राइट विल बिकम फारदेस्ट। ठीक है, अब मेरी रेंज एक्सटेंड होगी टू द फारदेस्ट पॉइंट आई हैव फाइंड टिल नाउ। और मैं जंप्स को भी क्या कर दूंगी, एक प्लस, कि अब मैं नेक्स्ट रेंज को एक्सप्लोर करने जा रही हूँ, सो उस रेंज के लिए मेरा जंप क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा। सो आफ्टर डूइंग दिस ऑल, जब मैं लास्ट वाले इंडेक्स पर पहुंच जाऊंगी, आई विल सिंपली रिटर्न दिस जंप। ठीक है, मैं लास्ट वाले इंडेक्स पर कैसे पहुंचूंगी, बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस लूप, आई हैव यूज दिस व्हाइल लूप। ठीक है, मैंने राइट को उतनी देर तक चलाया जब तक वो लास्ट इंडेक्स पर नहीं पहुंच जाता, एंड जब वो लास्ट इंडेक्स पर पहुंच जाएगा, immediately I will return my number of jumps. Okay, so let's see the code. So the code is similar to the code I have written, so still I will show you it once. See here, I have used one left pointer, right pointer, and the number of jumps. Okay, then I have used the while loop for right, and it will go till the last element of the array. I have initialized farthest with the 0. ठीक है, initially क्योंकि मुझे नहीं पता कि farthest point कौन सा होने वाला है. So for iterating in the range, I have used this for loop and I have find the maximum of the farthest क्योंकि मुझे सबसे दूर वाला point चाहिए using this range. Then after finding the farthest point, मैंने क्या किया, अपने left को just right के एक बाद क्या कर दिया, place कर दिया for exploring the next range. और मैं right कहाँ पे ले जाऊंगी, to the farthest point I have found till now. अब मेरे न्यू रेंज बन गई ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, तो मैं जंप्स को भी क्या कर दूंगी, प्लस प्लस कर दूंगी, क्योंकि अब नेक्स्ट रेंज के लिए जंप मेरा एक इंक्रीज हो जाएगा। आफ्टर डूइंग दिस ऑल, आई विल जस्ट रिटर्न द नंबर ऑफ जंप्स। ओके, सो लेट्स सी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी of this solution will be O of n. Okay, you must say that why it will be O of n, क्योंकि हम तो इधर दो लूप्स यूज कर रहे हैं, राइट, एक हमने ये वाइल लूप यूज किया है, एक हमने ये फॉर लूप यूज किया है, वी आर आइटरेटिंग ट्वाइस, बट नो, ये हमें दिखने में ऐसा लग रहा है कि हमने दो लूप्स यूज किए हैं, बट स्टिल द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O of n, क्योंकि वी आर ट्रेवर्सिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द अरे ओनली वंस। ठीक है, एक एलिमेंट ऑफ द अरे वो एक ही बार क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है in the whole logic, तो इसीलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O of n, and the space complexity is definitely O of 1 because we haven't used any extra space. So yeah,
This was it for this video. So if you really like this video, please hit that like button and also subscribe to my channel for more upcoming videos. Thank you.